Hello everyone. Today's topic is operators. Operators, they are the special symbols which are basically used for arithmetical, relational or logical operation. Let us start with the very first topic, arithmetic operators. Arithmetic operators. Arithmetic operators basically used for mathematical operations. We have plus, minus, multiplication, division and modulus operator. Let us consider an example where a is equals to 5 and b equals to 2. So if we add a plus b, then what will be the output? That will be 7. If a minus b, then the output will be 3. If a into b, the output will be 10. If a divided by b, then output will be 2. How to? If we divide इंटीजर बाय इंटीजर, अगर मैं इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करूंगी तो आंसर भी मुझे किस में मिलेगा? आंसर भी मुझे इंटीजर में ही मिलेगा। इसका मतलब अगर मुझे रियल नंबर्स में वैल्यूज चाहिए तो मुझे एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू मेरी रियल होनी चाहिए, चाहे वो नॉमिनेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो। दैट मीन्स अगर मैं 5.0 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो आउटपुट विल बी 2.5। इफ 5 डिवाइड बाय 2.0, the output will be 2.5. If I write 5.0 divide by 2.0, again the output will be 2.5. यानी कि अगर मुझे रियल नंबर्स में आंसर चाहिए, पॉइंट्स में आंसर चाहिए, तो मेरा नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में से एक भी वैल्यू अगर पॉइंट है तभी मुझे आंसर पॉइंट्स में मिलेगा। Then comes to the next operator, that is a modulus operator. Modulus operator is basically used for remainder purpose. If I divide a modulus b, that means कि 5 divided by 2, the remainder will be 1. Okay. If I divide 7 modulus 3, then what will be the output? That will be 1. Okay. Then if I divide 7 modulus 4, so what will the remainder? That will be 3. Okay, if I divide 7 by first modulus 5, output will be 2. Then what will be the output if I divide 5 modulus 7? आप सबको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में. You have 5 seconds with you. Just keep on writing. Okay, let us check the answer. If I divide 5 by 7, that means 7 zeros are 0 and remainder will be 5. 5 modulus 7, the output will be 5. In a similar way, अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि 8 modulus 13, तो what will be the output? The output will be 8. आपका output भी क्या आएगा? 8 आएगा. Relational operators. Relational operators are basically used to compare the two values. Let us take an example. Let x equals to 10 and y equals to 20. If we want to check क्या ये दोनों value equal हैं, then we go for double equal. x is exactly equals to y. False. That means कि relational operators कैसी value return करते हैं? They return a boolean value, either true or false. क्या x is not equal to y? ट्रू, x जो है वो ट्रू y के इक्वल नहीं है. ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y. फॉल्स, x बड़ा नहीं है. x इज लेस देन y. यस, इट इज ट्रू, x जो है वो छोटा है. x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y. दैट इज फॉल्स, ना ही वो बड़ा है ना ही वो इक्वल है. x इज लेस देन इक्वल्स टू y. दैट इज ट्रू, x जो है वो छोटा है. Relational operators used for comparing the two variables या values, they return a boolean value. Logical operators. Logical operators are used to determine the logic between variables and values. We have 3 different types of operators, that is AND, OR and NOT, where AND is represented by ampersand, where OR is represented by pipe symbol and NOT is represented by exclamatory mark. Logical AND. Logical AND returns true if both the statements are true. अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा. लेट हैव एन एग्जाम्पल कि x की वैल्यू क्या कंसिडर करी मैंने? 5 कंसिडर करी. क्या x इज लेस देन 5? नो, फॉल्स. एंड x इज लेस देन 10? यस, लेकिन एक फॉल्स है, दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स अ फॉल्स.
लॉजिकल और रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। x इज लेस देन 5, यस। x इज लेस देन 4, फॉल्स। बट अगर एक भी आंसर ट्रू है दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स अ ट्रू वैल्यू। लॉजिकल नॉट सेज कि आपका जो भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा मैं उस फाइनल रिजल्ट का भी रिवर्स रिटर्न करूंगा। दैट मीन्स क्या x लेस देन 5 है, नो। क्या x इज लेस देन 10, ट्रू। बट सिंस हमने क्या यूज करा है, एंड यूज करा है, तो टोटल आंसर क्या आएगा, टोटल आंसर आएगा फॉल्स। और नॉट फॉल्स मीन्स दैट इज द ट्रू, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, ट्रू रिटर्न होगा। फिर से एक बारी, एंड मीन्स दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा। लॉजिकल और सेज अगर एक भी ट्रू होगा मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, और अगर लॉजिकल नॉट सेज कि आपके एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट होगा मैं उसका रिवर्स रिटर्न करूंगा। Increment and decrement operators. Increment and decrement operators are unary operators. They works with single operand. ये single operands के साथ ही काम करते हैं. As they are unary, they have a higher precedence. इनकी precedence का higher most होते हैं. Let's have an example. Let us start with the increment operator. A equals to 10 and I want to increment my value by 1. मुझे अपनी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है। तो एक्चुअली मैं इसको लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, a equals to 10, a is equals to a plus 1। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको a प्लस प्लस भी लिख सकती हूँ और प्लस प्लस a भी लिख सकती हूँ। क्या इन दोनों में भी डिफरेंस है? यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। दैट इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। और वहीं पर हमारा दूसरा ऑपरेटर दैट इज अ प्लस प्लस a, दैट इज अ प्री इंक्रीमेंट, ये प्री इंक्रीमेंट है। अब पोस्ट एंड प्री में क्या डिफरेंस है मैम? पोस्ट एंड प्री में डिफरेंस ये है कि हमारा पोस्ट कहता है मेरे को जब पहले आप मेरी वैल्यू यूज़ कर लो और जब मेरी वैल्यू यूज़ हो जाएगी तब मैं अपनी वैल्यू में इंक्रीमेंट करूँगा, यानी कि वैल्यू यूज़ होने के बाद वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। बट ऑन अदर हैंड प्री इंक्रीमेंट कहता है पहले मैं अपनी वैल्यू में इंक्रीमेंट करूँगा, आफ्टर देन यू कैन यूज़ मी, उसके बाद आप मुझे यूज़ कर सकते हो। लेट हैव एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ और मैंने इस बार एग्जाम्पल क्या लिया, सपोज करते हैं कि लेट a इक्वल्स टू 10। एक एग्जाम्पल में a इक्वल्स टू 10 लिया। अब मैंने इसके बाद लिखा b इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस इंटू 5, यानी कि a प्लस प्लस इंटू 5। तो ये किस टाइप से वर्क करेगा? इट वर्क्स लाइक दिस। ओके, आई जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल a इक्वल्स टू 10। ओके, b इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस, ए प्लस प्लस है, दैट मीन्स बाद में इंक्रीमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू यूज अ वैल्यू ऑफ ए दैट इज 10, लेकिन जैसे ही उसने 10 को यूज करा इमीडिएटली ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप बी को प्रिंट कराते हो 10 इंटू 5 जब इवेल्युएट होगा तो आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। दैट विल कम टू द 50। ओके, देन नेक्स्ट है अगर वहीं पर अगर मैं दूसरा एक और कंडीशन लेते हैं, दूसरा यूज़ करते हैं, लेट a इक्वल्स टू 10। इस बार a की वैल्यू फिर से 10 है। लेट b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस, लेट b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस a इंटू 5। तो आंसर कैसे चलेगा? आपने कहा लेट कि मैम a इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है 10। ओके, मैंने a की वैल्यू को कंसिडर कर लिया 10। b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। ओके, प्लस प्लस ए दैट मीन्स पहले मेरी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद अब हमारी वैल्यू प्लेस होगी और क्या वैल्यू आएगी, 11 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 55 और जो आंसर आएगा वो आएगा 55। Let us consider one more example. A equals to 10 and the question is B is equals to A plus 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 A plus 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 A plus plus. Okay, then what will be the output? तो जब भी हम क्वेश्चंस ये वाले करेंगे तब हम ध्यान रखेंगे कि हम अपने पास एक ड्राई रन के लिए वेरिएबल या कॉलम्स बना के रख लेते हैं, एक ए के लिए और एक हमारे पास सेकेंड वेरिएबल है बी। तो मैंने दो कॉलम्स बना लिए। ए को कहाँ से स्टार्ट किया, 10 से, और फिर काम स्टार्ट करा।
ओके, ए प्लस प्लस है, इसका मतलब बाद में वैल्यू बढ़ेगी। अभी जो वैल्यू प्लेस होगी वो तो होगी 10, लेकिन जैसे ही 10 प्लेस हुई इमीडिएटली ए की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई, 11 हो गई। ओके, देन अगेन क्या था, अब आगे बढ़े तो आगे हमें पास मिला प्लस प्लस मिला प्लस, और उसके बाद अगेन फिर हमारे पास था ए प्लस प्लस। ओहो, फिर से वैल्यू यूज़ होने के बाद इंक्रीमेंट होगी। राइट नाउ ए की वैल्यू क्या है, 11, तो यहाँ पर 11 प्लेस होगी और जैसे ही वैल्यू प्लेस हुई इमीडिएटली ए की वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और जो बी में आंसर आएगा, बी में जब हम पूरे इवेल्युएट करेंगे तो आंसर आएगा 21। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बी इज, बी का आउटपुट जो होगा वो होगा 21। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से लेट की a इक्वल्स टू 10, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है, एंड देन वी वांट b इज इक्वल्स टू a प्लस 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 a। तो आंसर क्या आएगा, देन हमारा आंसर कुछ इस टाइप से होगा। फिर से हमारे पास है वैल्यूज़, तो हम फिर से अपने पास दो कॉलम्स बना लेते हैं, a एंड b। ओके, देन वी स्टार्ट फ्रॉम दिस a प्लस प्लस। ओके, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है, और a प्लस प्लस है, दैट मीन्स यूज़ होने के बाद वैल्यू बढ़ेगी। और अभी हमने क्या यूज़ किया, अभी हमने 10 यूज़ किया, लेकिन जैसे ही वैल्यू यूज़ हो गई इमीडिएटली वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 11। नेक्स्ट हम आए प्लस करा, एंड देन वी हैव प्लस प्लस ए। ओके, प्लस प्लस ए मीन्स पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, पहले वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे, और प्लस प्लस ए का आंसर हो गया 12। और फाइनली बी में क्या आंसर आएगा, बी में आंसर आएगा दैट इज 22। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर जहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, वहीं पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिड्यूसेस द वैल्यू बाय 1, वो हमारी वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करते हैं। मैं एक एग्जांपल में, छोटे से एग्जांपल में बात समझा देती हूँ। लेट a इक्वल्स टू 10, और अगर मुझे 1 का डिक्रीमेंट करना है तो आई गो फॉर a इज इक्वल्स टू a माइनस 1, और मैं इसको अगेन दो तरीके से लिख सकती हूँ, a माइनस माइनस, दैट इज अ पोस्ट डिक्रीमेंट। टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स विथ 3 ऑपरेंड्स। ये 3 ऑपरेंड्स के साथ वर्क करते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। क्वेश्चन मार्क ऑलवेज वर्क फॉर ट्रू, क्वेश्चन मार्क ट्रू के लिए वर्क करता है, वहीं पर हमारा कॉलन वर्क्स फॉर फॉल्स, वो फॉल्स के लिए वर्क करता है। लेट हैव एन एग्जांपल, c इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b, देन स्टोर a, अदरवाइज स्टोर b। तो अगर इफ कंडीशन इज, इट इज अ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सी में किसकी वैल्यू स्टोर होगी, ए की, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सी में किसकी वैल्यू स्टोर होगी, बी की। अगर हम इसको कब यूज करते हैं, जब बहुत छोटी छोटी सी कंडीशंस होती हैं, देन वी गो फॉर टर्नरी ऑपरेटर्स। अब हम टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज equals to is your assignment operator which is used to assign a value to the variable, जो आपकी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कराता है। लेट हैव एन एग्जांपल, a इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स कि हमने a में 10 को स्टोर करा दिया। तो इक्वल इज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू स्टोर अ वैल्यू टू द वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है प्लस इक्वल। प्लस इक्वल मीन्स इफ यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 5, तो कैसे उसको यूज़ करेंगे, या तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू a प्लस 5, और या फिर मैं इसको a प्लस इक्वल्स टू 5 भी लिख सकती हूँ। दैट इज प्लस इक्वल्स टू इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। द वेरी नेक्स्ट ऑपरेटर इज माइनस इक्वल्स टू। माइनस इक्वल्स टू मीन्स कि अगर मुझे a में कितने का डिक्रीमेंट करना है, 10 का डिक्रीमेंट करना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a इक्वल्स टू a माइनस 10 और a माइनस इक्वल्स टू 10, मैं इस टाइप से भी लिख सकती हूँ। अगर मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू मीन्स अगर मुझे 5 या 3 का इंक्रीमेंट करना है, कोई भी वैल्यू का
सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना है, ए में कितना मल्टीप्लाई हो जाए, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो मैं ए मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 3 भी लिख सकती हूँ। वी हैव, इसके अलावा वी हैव डिवीजन इक्वल टू सिमिलर वर्क करता है, मॉड्यूलस इक्वल्स टू भी हमारा सिमिलरली ही वर्क करता है। दे आर हैविंग अ लोएस्ट प्रेसिडेंस, इनकी सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होती है, यानी जब सारे ऑपरेटर्स वर्क कर जाते हैं तब ये काम करने आते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। Java operator precedence. Operator precedence determines the order in which the operator in an expression are evaluated. Or we can see like that the hierarchy of operators in which they are evaluated in an expression is known as precedence of operator. Let us consider, first of all, let us know if we say A plus B, then A and B both are operands, but plus is a operator, Operators and precedence. Operators and precedence में सबसे first reference always goes to unary one, as unary operator always works with single operand. ये single operands के साथ वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A प्लस प्लस, तो वैसे ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं दे आर कंसिडर एज अ यूनरी ऑपरेटर। एंड द सेकेंड प्रेसिडेंस गोज टू बाइनरी वंस। बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच वर्क्स विद 2 ऑपरेंड्स। जो 2 ऑपरेंड्स के साथ वर्क करते हैं दे आर कंसिडर एज अ बाइनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B, और वी कैन से लाइक दैट A इज ग्रेटर देन B। और आप जब आप 2 ऑपरेंड्स के साथ वर्क करेंगे दैट इज कंसिडर एज अ बाइनरी ऑपरेटर। वहीं पर नेक्स्ट ऑपरेंड आता है हमारा पास टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी ऑपरेटर के बाद लास्ट प्रेफरेंस मिलती है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, और उसके बाद हमारी प्रेफरेंस जो है वो असाइनमेंट्स को मिलती है। A इज इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, एंड दे ऑल आर कंसिडर एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर।